बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फर्टिलाइजेशन तक पढ़ा था। इन टुडेस लेक्चर वी विल डिस्कस हाउ embryo is developed from the zygote, what is cleavage polyembryony, what is the structure and development of seed, and how the seed is dispersed and germinates. First of all, we discuss how embryo is developed. After fertilization, when zygote is formed, the nucleus of the zygote it divides two times to form four nuclei, and then these nuclei these move towards the lower part of the egg cell and again divide to form 8 nuclei, and these 8 nuclei these arrange themselves into two tiers of 4 nuclei each, means upper tier in which 4 nuclei is present and lower tier in which 4 nuclei are present, and then vertical walls separate these nuclei of each tier, and then the cross wall separate the 4 basal cells to form the lower tier. The cells of the upper and lower tier these divide again to form 4 tiers of 4 cells each, and in these 4 tiers the lowermost is called as the embryo tier. Upper to this is the suspensor tier, and third one is the rosette tier, and uppermost is the open tier, and this 16-celled embryo is called the proembryo. Now we will see diagrammatically the development of the embryo. This is the zygote. Nucleus of the zygote divides twice to form the 4 nuclei. Then vertical wall separates these nuclei, and then these 4 nuclei these divide again to form the 8 nuclei, and these 8 nuclei these are arranged into two tiers. This is the upper tier and this is the lower tier. The nuclei of these two tiers these divide again, and then as a result of this 4 tiers are produced: 1, 2, 3 and 4. The lowermost tier is called as the embryonal tier, or the cells of this are known as the embryonal cells. Upper to this is the suspensor tier or suspensor cells. Third one is the rosette tier or rosette cells, and the fourth or uppermost is the open tier or open cells. Then these 4 tiers in which the 16 cells are present, this 16 celled structure is called the proembryo. And then in the when the embryo are formed, then in this proembryo structure the cells of the suspensor tier they start to elongate. We saw in this diagram these suspensor cells these start to elongate, and these are called the suspensor cells or suspensors. In Pinus, cleavage polyembryony is formed. What is cleavage polyembryony? That the embryo of the Pinus it divides into several equal parts, and each part is capable to develop into an independent embryo. And in Pinus about 4 to 8 separate embryos are developed. Suspensor cells, as we observed in the diagram, that these elongate,
to form the primary suspensors, and due to the elongation of these cells, the embryo tire of the embryo, it is pushed into the vegetative tissue of the gametophyte, and primary suspensors, these become coiled and buckled. Some of the embryonal cells, they divide and elongate to form the embryonal tubes, and which function as the secondary suspensors, and these push the embryos further into the cavity or the gametophyte tissue. Lower end of the embryo system, these separates and cleaves into 4 distinct vertical series of cells, and each series consists of an apical cell, 2 or more embryonal tubes, and primary suspensor cell. Out of these developing embryos, only one embryo, it competes with the others and it develops, while the all other embryos, these abort. मीन्स के ये जो डेवलपिंग 4 to 8 एम्ब्रियोज हैं, 4 हैं या इससे ज़्यादा हैं, इनमें से कोई एक एम्ब्रियो जो है वो compete करके जो है वो डेवलपमेंट जारी रखता है, और बाकी सब एम्ब्रियोज जो हैं वो abort हो जाते हैं, वो डिजनरेट हो जाते हैं। अभी हम डायग्राम में पीछे देखा, तो यहाँ हम देखते हैं दोबारा से इसको, इसी डायग्राम को। The cells of the suspensors, these elongate, and the embryonal cells, these divide, and some upper cells of the embryos, these divide and they produce the secondary suspensors, and then these developing series of cells, these separate from each other, independent from each other, and they form the separate embryos. They develop in the form of separate embryos. Upper cells of these embryo, these divide and they produce the secondary suspensors, and due to the formation of these secondary suspension by the elongation of these cells to form the tube-like structures, the length of these primary suspensors and the secondary suspensors increases, and these developing embryos, these are pushed into the gametophyte tissues, and these primary suspensors, these become coiled and these buckled with each other, and these cells which are present in these एम्ब्रियोज क्लीव होकर, ये जो है सेपरेट होकर, ये सेपरेट जो है वो सीरीज़ में जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अगर 4 सीरीज़ में जो है वो अलग हुए हैं तो ये 4 एम्ब्रियोज जो है डेवलप करेंगे और अगर पहले 4 इन एम्ब्रियो सेल में डिवीजन हुई है तो 8 डेवलप हुए हैं, तो इसमें 8 रोज ऑफ सेल्स या 8 एम्ब्रियोज जो हैं वो डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो एम्ब्रियो सेल्स हैं, इसमें जब ये क्लीव होके सेपरेट होते हैं, ग्रो करते हैं, तो इसमें हर एक में जो है वो एपिकल सेल प्रेजेंट होता है, और जो है वो प्राइमरी सस्पेंसर्स, 1 और 2 प्राइमरी सस्पेंसर्स होते हैं इसके अंदर, और फिर इसकी डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यू रहती है। एम्ब्रियोनल सेल जो है उसमें डिवीजन कंटिन्यू रहती है, और इसमें मैस ऑफ सेल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और उसमें फिर जो है वो टिश्यू सेपरेट होके जो है वो डिफरेंट टाइप के इसके अंदर जो एम्ब्रियो में डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, इसके डिफरेंट रीजन जो हैं वो डेवलप करते हैं। और यहाँ पर जो है वो हम देख सकते हैं, आगे डायग्राम में हम देखते हैं कि इसमें जो है वो एम्ब्रियो जो है जब डेवलप होता है तो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, इसका वर्टिकल सेक्शन हम देखेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है, इसमें ये जो है वो सस्पेंसर सेल्स हैं, ये जो है पीछे इलोंगेट होके जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद जो एम्ब्रियो पार्ट है, इसमें जो विजिबल पार्ट है, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें जो है वो
कॉटिलीडन जो है वो एक सर्कल में जो है वो अरेंज हुए हुए नज़र आ रहे हैं, और इनके सेंटर में जो है वो शूट जो है वो प्रेजेंट होता है, बिकल शूट जो है वो प्रेजेंट होता है, और उसके इर्द गिर्द जो है ये कॉटिलीडन्स प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल के अंदर जैसे ही एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उसके अंदर जो है वो कुछ और चेंजेस भी जो है वो डेवलप होती हैं, कुछ और चेंजेस होती हैं, जिसकी वजह से ये ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह से सीड जो है उसकी डेवलपमेंट होती है। ये कौन कौन सी चेंजेस आती हैं? एक मेच्योर एम्ब्रियो जो है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, वर्ल्ड ऑफ कॉटिलीडन प्रेजेंट होता है, और यूजुअली जो है वो 8 कॉटिलीडन्स आर प्रेजेंट जो शूट एपेक्स को सराउंड करते हैं, और उसके पीछे जो है वो शॉर्ट हाइपोकोटाइल प्रेजेंट होता है, और हाइपोकोटाइल जो है वो रीजन होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस में के जिससे रेडिकल डेवलप होता है, और रेडिकल जो है वो ग्रो करके प्राइमरी रूट बनाती है, उससे प्राइमरी रूट डेवलप होती है। जबकि एम्ब्रियोनल एक्सिस में उसके अपर साइड पर जो है वो प्लूम्यूल प्रेजेंट होता है, एपिकोटाइल प्लूम्यूल उससे डेवलप होता है, और प्लूम्यूल जो है उससे शूट एपेक्स डेवलप होता है। ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट integument layers also undergo changes, and the inner fleshy layer of the integument, it degenerates, and it becomes papery, it becomes thin, and it forms the layer which is known as the tegmen, inner seed coat या टेस्टा भी इसको कहते हैं। और मोस्ट ऑफ द न्यूसेलस टिश्यू जो है ये डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है वो यूटिलाइज कर लेता है एज अ फूड, और रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो माइक्रोपाइलर एंड पर जो है वो पेरिस्पर्म फॉर्म करता है। और फीमेल गेमीटोफाइट के जो न्यूट्रिशन रिच सेल्स हैं जो एम्ब्रियो के सराउंड करते हैं, वो सीड का एंडोस्पर्म फॉर्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट आगे जो है वो डायग्राम देखते हैं, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ सीड दिखाया गया है। दिस आर द कॉटिलीडन्स जो कि वर्ल्ड में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो कॉटिलीडन्स हैं ये प्लूम्यूल शूट एपेक्स जो है वो उसके इर्द गिर्द जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उसको सराउंड करते हैं। और इसके पीछे जो है वो यहाँ पर जो है ये हाइपोकोटाइल प्रेजेंट होता है, और हाइपोकोटाइल जो है इसके बैक पर जो है वो रेडिकल प्रेजेंट होता है, और ये रेडिकल जो है वो डेवलप करके प्राइमरी रूट फॉर्म करता है। और यहाँ पर जो है वो हम इसके अपर पार्ट में जो है वो देख सकते हैं कि इसका जो इंटेगुमेंट है उसकी इनर जो फ्लैशी लेयर है वो डिजेनरेट हो जाती है, और ये जो है वो इंटेगुमेंट जो है वो एक थिन लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है एम्ब्रियो के इर्द गिर्द जो है। और ये दिस इज़ नोन एज द टैगमेन, या जो है वो इसको टेस्टा सीड कोट या टेस्टा भी कहा जाता है। और इसमें जो न्यूसेलस टिश्यू है ये हम देख सकते हैं, इसमें जहाँ माइक्रोपाइलर रीजन प्रेजेंट होता है, ऑल ऑफ द न्यूसेलस टिश्यू जो है टू यूटिलाइज बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और जो रह जाता है वो जो है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो है वो ऑर्गेनाइज होके जो है वो जो रीजन फॉर्म करता है दैट इज़ नोन एज द पेरिस्पर्म और न्यूसेलस कैप इसको कहा जाता है। एंड दीज आर द रिमेन्स ऑफ द सस्पेंसर सेल्स, और ये जो है वो माइक्रोपाइलर रीजन है। एंड दिस इज़ द एंडोस्पर्म रीजन जो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है उसके सराउंडिंग जो है वो फीमेल गेमीटोफाइट का टिश्यू जो है प्रेजेंट होता है। दिस इज़ नोन एज द एंडोस्पर्म, दिस इज़ नोन एज द एंडोस्पर्म, एंड दिस इज़ द वर्टिकल सेक्शन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द सीड, जो कि ओव्यूल जो है वो उससे मेच्योर जब होता है ओव्यूल तो वो इस तरह से सीड में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ओव्यूल में जो चेंजेस आती हैं तो उसके बाद मेच्योर होने के बाद इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सीड। इस तरह से सीड की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है।
Now next, how the seed is dispersed. सीड की जो डिस्पर्सल है, it occurs by some changes which occur in the female cone. और मेच्योर सीड जो है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके इर्द गिर्द जो है वो दो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो है विंग्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि ओविलिफेरस स्केल की सरफेस से बनती हैं और इसकी सीड के जो है वो प्रेजेंट होती हैं. और एंड these wings, membranous wings, these help the seed to disperse, to move from one place to other by the wind. And when these seeds are mature, then these oviviparous scales, these are separated from each other, means के distance जो है वो इन दोनों दो जो करीबी स्केल प्रेजेंट होते हैं, नियरेस्ट जो है एडजेसेंट, उनके अंदर डिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है. और ये डिस्टेंस कैसे जो है वो होता है कि इसमें कोन का जो एक्सिस है वो इलोंगेट होता है और स्केल्स एक दूसरे से जो है वो डिस्टेंस पर हो जाते हैं, जिसकी वजह से सीड्स इजीली जो है वो डिटैच हो जाते हैं, सीड्स इजीली जो है वो से रिमूव हो जाते हैं और फिर एक जगह से दूसरी जगह पर जो है विंग्स की हेल्प से विंड के थ्रू जो है वो डिस्टेंस पर जो है वो पहुंच जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली मूव करते हैं. देन द जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स की जो जर्मिनेशन है, ये जो है वो जैसे ही किसी सूटेबल प्लेस पर पहुंचते हैं जो उनकी ग्रोथ के लिए सूटेबल होती है, तो इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है. दिस जर्मिनेशन इज एपीजियल मीन्स के when the seeds are on the ground, the germination of the seed is started, यानी कि सॉइल की सरफेस के ऊपर जो है वो अबव द ग्राउंड सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है. तो इस टाइप की जो जर्मिनेशन है वो उसको एपीजियल जर्मिनेशन कहा जाता है. कॉटिलिडन्स जो है वो कुछ देर के लिए सीड के अंदर ही रहते हैं, so that they can absorb food from the endosperm. और फाइनली जो है वो फिर जब मेच्योर हो जाते हैं तो वो सीड से बाहर आ जाते हैं और इस तरह से जो है वो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स ऑफ द सीडलिंग के तौर पर एक्ट करते हैं, यानी कि स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी जो है उसमें जो है वो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक जो है वो स्ट्रक्चर्स या प्राइमरी लीव्स के तौर पर एक्ट करते हैं. फिर इनके बीच में जो है वो प्लूम्यूल डेवलप होता है और जो फिर प्राइमरी शूट डेवलप करता है और जिसके इर्द गिर्द जो है नीडल लाइक लीव्स जो हैं वो स्पाइरली अरेंज होते हैं और फिर इस तरह से बाद में जो है वो उसमें डवार्फ शूट या स्पर्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. प्राइमरी लीव्स के बीच में जो है वो डवार्फ शूट्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. तो इस तरह से स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी जो है वो सीड्स की जर्मिनेशन से डेवलप हो जाती है. नाउ वी सी सम डायग्राम्स. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोन, जिसमें कि हमने पहले पढ़ा कि सीड्स की डिस्पर्सल में जो है वो किस तरह से हेल्प होती है कि स्पोरोफिल्स में जो मेगास्पोरोफिल्स हैं, ओलिफेरस स्केल्स जो हैं, ये एक दूसरे से जो है वो डिस्टेंस पर आ जाते हैं. और कैसे जो है वो डिस्टेंस पर आते हैं कि कोन का ये जो एक्सिस है ये इलोंगेट होता है, उसकी लेंथ में इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से ये स्केल्स एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं. एंड इन दिस वे द सीड्स कैन इजीली बी डिटैच्ड फ्रॉम दिस स्केल्स. Then with the help of wings, these are carried through distance, and then each seed which is released from the oviviparous scales, these have wing-like structures. These are wings which is present on the sides of the seeds. This is the structure of the mature seed, which has wing around it
with the help membranous wing with the help which can easily move from one place to other। जहाँ पर जो है वो सीड का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है वो हम दोबारा से देख सकते हैं कि इसमें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसमें माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सस्पेंसर सेल प्रेजेंट है और इसके जो है वो हाइपोकोटाइल प्रेजेंट है। हाइपोकोटाइल जो है वो रेडिकल डेवलप करेगा जहाँ से प्राइमरी रूट डेवलप होगी और उसके ऊपर वाली साइड पर हाइपोकोटाइल प्रेजेंट होता है जिससे जो है वो शूट डेवलप होता है और इसके इर्द गिर्द जो है वो स्पाइरली अरेंज्ड कोटिलीडन प्रेजेंट होते हैं। दिस इज़ द गेमिटोफाइट टिश्यू अराउंड द एम्ब्रियो जो एंडोस्पर्म कहलाता है और उसके बाद इसके इर्द गिर्द जो है ये जो टिश्यू है इसकी इंटेगुमेंट है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू टैगमेन और सीड कोट जो इसके इर्द गिर्द जो है वो प्रेजेंट होती है। दीज सीड्स विद द हेल्प ऑफ विंड व्हेन दे रीच द सूटेबल प्लेस फॉर इट्स ग्रोथ दीज जर्मिनेट और जर्मिनेशन की जो है वो इसमें कॉटिलीडन जो है वो जैसे ग्रोथ के लिए सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं तो हाइपोकोटाइल से जो रेडिकल है वो एनलार्ज करके इलोंगेट करके जो प्राइमरी रूट बनाता है जो ज़मीन की के अंदर जो है वो ग्रो करना एंटर होना शुरू हो जाती है। जबकि अबव द ग्राउंड इसके ये जो शूट एपेक्स है उसके इर्द गिर्द ये जो प्रेजेंट होते हैं कॉटिलीडनरी लीव्स जो है वो कुछ देर के लिए सीड कोट जो है वो सीड के साथ जो है वो अटैच रहते हैं और उसके बाद जो है फिर वो स्लोली जो है वो ग्रेजुअली वो इससे रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं और फर्स्ट कॉटिलीडनरी प्राइमरी लीव्स फोटोसिंथेटिक लीव्स के तौर पर एक्ट करते हैं। ये जो है वो हाइपोकोटाइल से रेडिकल जो है वो नीचे की तरफ रूट जो है वो डेवलप करता है और कॉटिलीडन जो है अभी सीड के अंदर है फिर उसके बाद ये इससे बाहर जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं और ये फिर अल्टीमेटली जो है वो रिलीज़ करते हैं और शूट एपेक्स जो है वो इन लीव्स जो है वो उनके बीच में एक्सिल्स में जो है वो ड्वार्फ शूट जो है वो ग्रो करना शुरू कर देती है। तो इस तरह से जो है वो सीड की जर्मिनेशन के बाद स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है हाइपोकोटाइल और जिससे फिर जो है वो रेडिकल रूट फॉर्म करता है। दीज आर द ये और डायग्राम्स हैं कलर डायग्राम्स हैं जो सीड्स की जर्मिनेशन को जो है वो शो कर रही हैं डिफरेंट स्टेजेस पर और जो है वो डिफरेंट जो है वो सीड्स में उनमें डिफरेंट कंडीशन जो है हमें दिखाई हुई है कि जिसमें जो है वो कहीं पर जो है वो सीड अभी जो है वो सीडलिंग कॉटिलीडन के साथ जो है वो अटैच है और यहाँ पर जो है वो कुछ जो है वो उससे रिलीज़ हो गए हैं यानी कि सीड जो है वो उसकी डिफरेंट जर्मिनेशन की स्टेजेस यहाँ पर जो है वो दिखाई हुई हैं। इन दिस वे द स्पोरोफाइट डेवलपमेंट इज़ कंप्लीटेड जो कि जाइगोट की जर्मिनेशन से एम्ब्रियो फॉर्म होकर जो है वो डेवलप होती हैं। तो इस तरह से हमने पाइनस जो टाइप है वो कंप्लीट कर ली है और इसके बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पाइनस का लाइफ साइकिल को डिटेल से हम पढ़ेंगे।